हेलो, गुड इवनिंग। हो गई गुड इवनिंग? नहीं, गुड आफ्टरनून है अभी तो। गुड आफ्टरनून। हाउ आर वी? गुड आफ्टरनून। कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ भी रहे हो या मैं बहुत से बच्चे मुझे होमवर्क तो भेजते हैं, ऐप पे भी पर्सनल भी। सब किसी किसी की तो चल रही है। यस ध्रुवा, जितने दिनों बाद क्लास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। So I can see a lot of new names today, whom I haven't seen before. So probably because आज रिविजन क्लास है तो सबने सोचा अब तक तो नहीं पढ़ा तो चलो अभी पढ़ लें, ये क्विक रिविजन ले लें, है ना? So anyone who's new and would like to share कि क्या सिचुएशन है आज, क्यों हमने क्लास ज्वाइन की है? ट्रू। नहीं पढ़ा है, इंग्लिश नहीं पढ़ी है ना? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। आज कोइंसिडेंस है ध्रुव, क्या कोइंसिडेंस है? Yes, Sumit. Eventually, we will. Oh, congratulations, Dhruv. Many, many happy returns of the day. All the love and light to you. Sumit, yes, we will do a quick recap as in how to crack the question. What is the trick? How to attempt that particular question. So, today, and not just for Sumit, but for everyone, today, those who were attending classes and those who were not, for everyone, today we are going to do a quick recap how the paper format is, what type of questions shall we expect, and then what are some compulsory mandate questions that come across and other optional questions, and then discuss the format of writing skills or what are the tips to be taken care of or tricks of cracking any particular question, things to remember, points to remember. So, this is how we are going to do it. Yes, are we good with this? हाँ, are we good with this? अच्छा, voice low है. Up, how is it now? Good. Okay. So I'm saying today we are going to give it a good revision, a quick revision of the whole, wherein we'll see that how to crack the whole question, like mandatory questions, which are the optional questions, what type of questions shall we expect, and how to particularly crack those questions, and what are the tips or points to be remembered, or what are the tricks to be applied to actually do the question in the minimalist time possible. Yes? So, are we good with this? Okay, okay. ठीक है. So, start करते हैं with the question paper format. So, this is part B, okay? This is part B of your question paper. Okay, you will get part 1 as law, and this is business correspondence and reporting, which is going to be part B of the same paper. Paper 2, part B. Now, this particular is of how many marks? Who is going to tell? How many marks? Yes, exactly. 40 marks का पेपर होता है ये. Part B only 40 marks का होता है. ठीक है. Now, इस part B को हम divide करते हैं in several questions. Question number 7, question number 8, question number 9, question number 10, question number 11. Now, question number 7 is a mandatory question, compulsory question. So, compulsory question में often students का ये doubt होता है कि अरे compulsory है that means करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो marks deduct होंगे. No, they expect you to do this question. अगर नहीं आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है. ठीक है. Out of these 4, they give you a choice to attempt any 3.
That is actually the difference. That is the meaning of compulsory and optional question. By compulsory, they do not mean that you have to and your marks will be deducted. Marks won't be deducted, but the point is कि बाद के 4 questions में से वो आपको option दे रहे हैं कि आप कोई भी 3 करो. बट पहले वाला जो 7th question है, they're asking you कि नहीं, ये इसमें कोई option नहीं है. सो बेसिकली हर एक क्वेश्चन अगर हम देखें पार्ट्स में डिवाइड होता है फर्दर 7A 7B 8A 8B 8C करके फर्दर हर क्वेश्चन डिवाइड होता है. बट ऑल इन ऑल अगर हम देखें इन टोटल ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स. ब्रॉडली सिर्फ 10 मार्क्स का होता है. क्वेश्चन नंबर 7 10 मार्क्स का होता है. 8 9 10 11 हर कोई 10 मार्क्स का होता है. तो बेसिकली 10 मार्क्स आपको यहाँ अर्न करने हैं और बाकी के 30 आपको इस 40 में से निकालने हैं. सो दैट इज वाई वो अटेम्प्ट करना उस बेसिस से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके, सो वॉल्यूम इशू, वेट. हाउ इज इट नाउ? Voice, is it better now? Is it all right, or do you want me to? Okay, better. Bhumika, perfect. Okay, thank you Anushka, thank you Riya and Bhumika. Okay, I like your name, Android Blue Droid. What does it mean? Android, I know, phone. Blue Droid, Bluetooth. What does it mean? Android Blue Droid. It's a good name. Different. बताओ अपने नाम का मतलब. सिर्फ राइमिंग करने के लिए रखा है? चलो ओके, मिस्टर शाय ड्रॉइड. ओके, सो ये 10 मार्क्स हमें इस कंपल्सरी क्वेश्चन से लेने होते हैं और बाकी के 30 मार्क्स यहाँ से. That means कि that means कि अगर हम 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 8 9 10 11 में से हमारे पास स्कोप जो है मार्क्स अर्न करने का वो सिर्फ 30 मार्क्स का रह जाता है. दैट इज द ओनली थिंग. सो 30 यहाँ से 10 यहाँ से टोटल मार्क्स हो गए 40. यहाँ तक का पेपर क्लियर है कि हमें 7th क्वेश्चन कंपलसरी है और 8 9 10 11 में चॉइस है. हमें कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं. 3 अटेम्प्ट करने का मतलब आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये होता है कि अगर क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 में से सपोज यू आर पिकिंग क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 11 तो इसी के सब पार्ट्स करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं 8 का एक पार्ट कर दिया 9 का दूसरा पार्ट कर दिया, वो नहीं कर सकते हैं. स्पीड थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 40 मार्क्स है और पेपर में लिखना बहुत है. 3 राइटिंग स्किल्स तो लिखनी ही लिखनी है. ठीक है, ये क्लियर है? शैल आई मूव अहेड? ओके, थैंक यू रिया एंड भूमिका एंड आई एम होपिंग अदर्स टू. इट्स क्लियर टू ऑल. ल्यूसिड, थैंक यू दक्ष. अच्छा सुने, सो आगे ऐसा है. अब क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि बेचारे कंपलसरी क्वेश्चन में क्या होता है. कंपलसरी क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पार्ट ए में आता है 5 मार्क्स का. विवान, टेंडिंग टू योर क्वेरी. दूसरा आता है नोट मेकिंग 5 मार्क्स की. सो ये कंपलसरी क्वेश्चन में ये 2 चीजें आती हैं कंपलसरी. पार्ट ए में आता है कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम वाइडली वी नो इट. ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. अब वो क्वेश्चन कैसे भी डिवाइड हो सकते हैं. वो 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो 3 और 2 में डिवाइड हो सकते हैं, वो 3 1 1 हो सकते हैं, वो 2 1 1 हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है, बट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. सेकेंड होता है नोट मेकिंग. सो नोट मेकिंग 3 और 2 में सब डिवाइडेड होती है. नोट मेकिंग के पार्ट 3 मार्क्स के नोट्स होते हैं, 2 मार्क्स की समरी होती है. ऐसे करके ये टोटल क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है. नाउ विवान, कमिंग टू योर क्वेश्चन, पहले पार्ट 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स सेक्शन बी ऑफ पेपर. दिस इज व्हाट यू मीन.
कोई इसमें वो थोड़ी ना है कि पहले वो वाला अटेम्प्ट करना है, अगर आपको पार्ट 2 में है तो कर लो, बट आई वुड सजेस्ट टाइम इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू पेस अप विद। यू कांट वेस्ट टाइम कि चलो अगर मैं पहले पार्ट 2 कर रहा हूँ अटेम्प्ट बट वो 40 मार्क्स का ही है, ठीक है, तो उस पर अननेसेसरली टाइम वेस्ट करके पार्ट ए जो सेक्शन ए है तुम्हारे पेपर का उसके लिए टाइम को लॉस नहीं करना है। चाहे पार्ट ए पहले अटेम्प्ट करो, पार्ट बी पहले अटेम्प्ट करो, द की इज यू हैव टू मैनेज टाइम। सो दोज हु हैव अटेंडेड माय लेक्चर्स प्रीवियसली या जो बच्चों ने रिकॉर्डिंग देखी है, मैंने हमेशा बोला है कि टाइम इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू मैनेज। सो अब से अगर अब तक भी नहीं किया है तो अब से हम जो भी करेंगे वो हम टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर यू नीड टू कंप्लीट द इंटायर पेपर। अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, तभी मार्क्स आते हैं। तो अटेम्प्ट करने के लिए पेपर पूरा टाइम पे फिनिश होना चाहिए। सो हमने ये 7th क्वेश्चन देख लिया जो कंपल्सरी क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में कॉम्प्रिहेंशन है 5 मार्क्स का, सेकेंड पार्ट में नोट मेकिंग है 5 मार्क्स की, ठीक है। नाउ 8, 9, 10, 11 में ऐसे कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है कि ये ही आएगा, वो फिक्स नहीं है, बट एक जनरल पैटर्न फिक्स है, ठीक है। वो मैं बता देती हूँ कि एक जनरल पैटर्न क्या है। ओके, सो जनरल पैटर्न ये है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मैं देखूं, सो क्वेश्चन नंबर 8 हो चाहे 9 हो 10 हो 11 हो, ए पार्ट होता है, बी होता है, सी होता है, 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ए पार्ट में हमारा एक चैप्टर है कम्युनिकेशन, जिससे एक क्वेश्चन आता है, यूजली क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, समटाइम्स इट इज ऑफ 1+1 के फॉर्मेट में भी आ जाता है, बट यूजली 2 मार्कर आता है। बी पार्ट में हमारी ग्रामर आती है, ठीक है, जो कि है एक्टिव पैसिव, दैट इज वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, and Dhruv, yes, lecture is recording and if you have exam tomorrow you may leave if you wish. Reported speech and idioms and phrases, इन तीनों में से sometimes 2 sometimes 3 questions करके आते हैं, so that depends, ठीक है। ये 3+1 मतलब 3+1 के फॉर्मेट कैसे भी आ सकता है, 3 मार्कर आ सकता है, 1+1 आ सकता है, 2+1 करके आता है। यूजली 1 मार्कर्स आते हैं, जैसे एक एक्टिव पैसिव आ गया, एक रिपोर्टेड स्पीच आ गई, एक इडियम्स आ गए, ऐसे करके पेपर आता है, ठीक है। यहाँ पे 3, 2, 5 हो गया, यहाँ पे ये 3 मार्क्स का, बेसिकली ये 3 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का। अब सी पार्ट जो होता है वो एक राइटिंग स्किल होती है, जो यूजली 5 ही आती है, रेयर सिचुएशन में वो 3+2 जाती है। ऐसे करके ये पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का बन जाता है। अब चाहे क्वेश्चन नंबर 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, ये चारों क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो ए बी सी पार्ट में यही रहता है। ए एक ही पार्ट में रहता है, बी का 1, 2, 3 बन जाता है, सी का 1 ही रहता है, यूजली ये तो 1, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहां तक का क्लियर है? आदित्य, सारी ग्रामर एक साथ अटेम्प्ट कर दे तो बेटा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सपोज तुमने डिसाइड किया कि 8, 9, 10, 11 में से तुम 8 करोगे, 9 करोगे और 11 करोगे, ठीक है। अब तुमने सोचा कि मैं बी पार्ट सारा एक साथ कर दूं, 8 का, 10 का, 8 का, 9 का, 11 का। हो सकता है गलती से पेपर में तुम 10 की भी अटेम्प्ट कर डालो, या तुम्हें करना हो 10th क्वेश्चन अटेम्प्ट और तुम ग्रामर 11th की कर डालो। सो ये कंफ्यूजन अगर तुम सॉर्ट आउट खुद से कर सकते हो, तुम बहुत श्योर हो, देन यू आर ओके टू डू। मतलब ये कोई कंपल्शन नहीं है कि 8 का ए पार्ट अभी करा है तो सी पार्ट बाद में भी जाके अगर तुमने करा है तो दैट इज ऑल राइट। तुम्हें लग रहा है ए और बी पार्ट में कर सकता हूँ बट सी में अभी मुझे टाइम लग रहा है, तुमने सोचा छोड़ो मैं पहले 9 और 11 कर देता हूँ फिर 8 के सी पे आऊंगा, दैट यू कैन ऑलवेज डू, कोई इश्यू नहीं है इसमें।
एनी अदर डाउट एनीवन? क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो इसमें एक पार्ट और बता देती हूँ, वो ये है कि यूजुअली क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट प्रेसी राइटिंग आता है, प्रेसी राइटिंग। सो एंड प्रेसी राइटिंग इज इजी ऑल्सो। अभी तक के पेपर्स में मैंने यही फॉर्मेट देखा है, बाकी यू नेवर नो, चेंज भी हो सकता है एनी डे एनी टाइम, बट अभी तक के लिए प्रेसे आता है। सो आई वुड सजेस्ट प्रेसे राइटिंग को, क्योंकि इजी राइटिंग स्किल है, बहुत कम लिखना पड़ता है, मार्क्स इजीली मिल जाते हैं, सो वो करना इज बेटर। बाकी 9, 10, 11 में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि क्या आएगा राइटिंग स्किल में। हाँ, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा हर किसी में, और ग्रामर आएगी ही आएगी, राइटिंग स्किल्स आएगी ही आएगी। क्या आएगी? कांट से। यू हैव 9 राइटिंग स्किल्स, आउट ऑफ 9 कुछ भी आ सकती है, चाहे वो लेटर हो, चाहे रिपोर्ट हो, आर्टिकल हो, प्रेस से तो हो ही गया है, कुछ भी हो, मेमो हो, सर्कुलर हो, जॉब एप्लीकेशन हो, कोई भी हो, मेल्स हो, कोई भी आ सकती है। ठीक है, सो इट इज योर वाइज डिसीजन कि आपको क्या आता है और आप फिर कौन से 3 क्वेश्चन पिक करते हो, चूज करना, अटेम्प्ट करना। यहां तक का क्लियर है? यहां तक का सबको क्लियर है? एनी डाउट? नोटेड, ओके, ठीक है। सो अब एक एक टॉपिक वाइज चलते हैं, क्विक कोड क्रैकिंग के लिए। ठीक है, ये हमने फॉर्मेट देख लिया। सो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पे आते हैं। सो हु वुड टेल मी व्हाट इज द की टू डू कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस? हाउ टू डू देम? हाउ टू अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस? कोई भी ऐसा नहीं है। रीड ट्वाइस, नोट रीड ट्वाइस इज फॉर नोट मेकिंग, नॉट फॉर कॉम्प्रिहेंशन। स्किमिंग, वंशिका, वेरी गुड। Vivan, skim through the passage. Exactly. Skimming is the key. Usually जो हमारी अब तक हम करते हैं कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पैसेज पे जाते हैं, हम वो नहीं करेंगे। We will skim through the passage. We will read in between the lines and underline those lines. ठीक है, और हम अंडरलाइन करते चलेंगे जो जो हमने पढ़ा है। ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब हम स्किम करेंगे तो हम एक रफ आइडिया पैसेज का अपने दिमाग में ले लेंगे, और जब हम फिर क्वेश्चन से उसके साथ टैली करेंगे तो हम बहुत इजीली बता पाएंगे कि अरे ये वर्ड हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो हमारे लिए आंसर फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। और जो हमें लगे कि नहीं ये तो नहीं पता, ये तो ध्यान नहीं पड़ा या नहीं, तो जो हमारा अनअंडरलाइंड पार्ट है, जो पार्ट हमने अंडरलाइन नहीं किया, हम क्विकली उस पे जाके और उसको इजीली पता कर सकते हैं। यस, याद आई ये टेक्निक? स्किमिंग थ्रू द पैसेज, अंडरलाइन पैसेज कैसे करना है, इन बिटवीन लाइंस पढ़ना है। दैट इज द की, दैट इज द ट्रिक टू डू कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। एंड आई वुड सजेस्ट क्वेश्चन नंबर 7 से पहले 8, 9, 10, 11 में जो तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हें आता है वो क्वेश्चन कर दो, क्योंकि उसमें लिखना कम है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी थोड़ा सा तो पढ़ोगे, फिर आंसर्स देख के लिखोगे, नोट मेकिंग में पैसेज पढ़ के लिखोगे, बट 8, 9, 10, 11 में अगर तुमने कम्युनिकेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तुम्हारे को ग्रामर आती है और राइटिंग स्किल्स तुम्हें, तो तुम इजिली वो अटेम्प्ट कर सकते हो। फ्रेश भी होगे, खुद से लिखना है। 7 में तो ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट करना है दोनों पार्ट्स में, ए में भी बी में भी, तो उसको थोड़ा लेटर के लिए भी छोड़ सकते हैं, तो वहां पे तुम मार्क्स अचीव कर लोगे। कई बार अनसीन पैसेज हम डिकोड नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो टाइम हम पहले से ही अगर हमारा यूटिलाइज हुआ हुआ होगा तो हम 3 क्वेश्चन हमारे पहले से 30 मार्क्स सिक्योर होंगे हमारे। नेक्स्ट, नोट मेकिंग और अनसीन में भी पहले नोट मेकिंग करो फिर अनसीन करो। दो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट वट एवर यू फील लाइक वैसे कर सकते हो। ओके,
सो ये स्किमिंग थ्रू वाली चीज याद है. एंड नोट मेकिंग कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का बी. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, आई वुड लाइक टू नो कि क्या उन्हें ये समझ में आया है या कोई प्रॉब्लम है. Thank you, Vanshika. Yes, we read twice when it comes to note making passages. न्यू स्टूडेंट्स, एनीवन, ये स्किमिंग वाले में कुछ इशू है? ओके, थैंक यू उज्जवल फॉर एक्नॉलेजिंग. ठीक है, अब हम इस पे आ जाते हैं. ठीक है ना. तो जब हम इस पे आएंगे नोट मेकिंग पे, जो वंशिका एंड आदित्य बोथ ऑफ यू सेड रीड ट्वाइस एंड अंडरलाइन. एग्जैक्टली, देखो ये थिन लाइन डिफरेंस है बिटवीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एंड नोट मेकिंग. कॉम्प्रिहेंशन में हमने स्किम करा, हमने ये लाइन पढ़ी, ये लाइन पढ़ी, फिर हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, हमने स्किम किया. बट नोट मेकिंग में हम पूरा पैसेज ट्वाइस पढ़ेंगे. एंड व्हाट इज दैट टेक्निक कॉल्ड? वी विल रीड, अंडरस्टैंड, अंडरलाइन, सेग्रीगेट. रीड, अंडरलाइन, सॉरी, अंडरस्टैंड, अंडरलाइन, सेग्रीगेट. ये करना है हमें. सो हमने सबसे पहले क्या करना है, नोट मेकिंग का पैसेज रीड करना है थॉरली. क्यों करना है रीड? हु वुड टेल? Why do we need to read the passage, and that too twice and thoroughly? Who would tell why do we do this? Khushi, first time to get overview. Okay. Basically to understand. We would like to understand that what is the writer trying to say and what does he mean. First time to get an overview and then to separate it into points. Yes, Aditya, exactly. To understand it thoroughly and then to understand the points also. What is he trying to convey? What are the main points? And then we underline. सेकेंड रीडिंग में भी अंडरलाइन की ये मेन पॉइंट्स है, तभी हम उनको सेग्रीगेशन ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, इसके ये कौन सी हेडर्स में कौन सी चीज आएगी. तो जब हम अंडरलाइन करते हैं सेकेंड टाइम में, हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. सपोज ये भी कॉज है और ये भी कॉज है, तो ये दोनों एक ही साथ एक सब हेडिंग के नीचे अंडर लिख लेते हैं हम, और फिर हम इसके नोट्स बनाते हैं. नाउ नोट्स बनाने की सेकेंड टेक्निक इज दिस, दैट वी डू नॉट यूज सेंटेंसेस. दैट इज प्रोहिबिटेड इन नोट मेकिंग, राइट. सो नोट मेकिंग में हम कभी भी जो है सेंटेंसेस यूज नहीं करते, ओनली फ्रेजेस एंड वर्ड यूज करते हैं. उसकी जो इंडेंटेशंस होती हैं उसका भी तरीका होता है, और उसमें एब्रीविएशंस यूज करना भी अगेन नेसेसरी है. हम मिनिमम 4 मैक्सिमम 8 पे चलेंगे. एब्रीविएशंस यूज करना, एब्रीविएशन टेबल बनाएंगे, उसके बाद डैशेस एंड ऑल दैट का यूज नहीं करेंगे. हम यहाँ एक मेन हेडिंग देंगे, उसके नीचे लिखेंगे नोट्स, और ये मार्जिन से हम अपने नोट्स लिखना स्टार्ट करेंगे प्रॉपर पॉइंटर्स देके. कोई लिमिट नहीं है इन पॉइंट्स की, बट 4 to 6 पॉइंट्स में हमारा वाइंड अप हो जाता है इजीली, कितना भी बड़ा पैसेज हो. और बहुत बड़ा पैसेज तुम लोगों को आएगा भी नहीं. एन एब्रीविएशन नोट डाउन करना इज वेरी इजी. आई मीन इट शुड बी डन.
लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, एंड इसी नोट से फिर हमें क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट का सेकंड पार्ट जो होता है समरी, इन्हीं नोट से उठा के हमें समरी लिखनी है। नाउ ऑल दोज हु हैवंट डन any comprehension passage or any note making up till now, कौन है वो, जल्दी बताओ, जिसने अभी तक नहीं किया और अब इस क्लास में उसे ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड। डरने की बात नहीं है अगर किसी ने अभी तक भी कुछ नहीं किया है, सो लेट मी टेल देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखोगे और एक बार भी देखो, एक बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड फर्स्ट टाइम माइट टेक सम टाइम बट देन इट वोंट। तो कोई है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, उसको पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं है? वैसे तो 11th-12th में नोट मेकिंग होती है बट स्टिल। कोई नहीं है ऐसा जिसने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया, सबने एक बार, मतलब सबको पता है ये कौन सी चिड़िया है। आई डू नॉट वांट टू मेक इट सो बोरिंग, मतलब थोड़ा सा इंटरेक्ट करोगे तो आई मीन अच्छा ही रहेगा सबके लिए। Yes, Vanshika, I will. I do check. A lot of students have already sent me, so I do check. I might not be quite quick and instant in your replies, but I will definitely. In case you are sending me unseen comprehension or anything, you need to send me question. The only thing is, whenever you send anything over WhatsApp, do send me question also, because otherwise I'll check it quite vaguely. That is the thing. हम्म, ठीक है। सो नोट मेकिंग से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया, ठीक है। अब हम क्विकली जो सारे हमारे वो हैं राइटिंग स्किल्स, उनके फॉर्मेट्स रिवाइज करेंगे। यू टेल मी फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, विच वन टू स्टार्ट फ्रॉम, कौन सा पैसेज करना है और कौन सा पहले राइटिंग स्किल करनी है? सारे हम पैसेजेस जो है सारे जो हैं क्विकली से हम रिवाइज कर लेते हैं वन आफ्टर अनदर। रेज्यूमे रेज्यूमे लेटर के बाद, क्योंकि वो उस फॉर्मेट, उसका बेस जो कवर लेटर होता है वो सेम होता है। प्रेस से, ठीक है, चलो प्रेस से ही स्टार्ट करते हैं। प्रेस से मैं जरा इसका थोड़ा सा डेप्थ बढ़ा लूं। Will it be too much? No, it's all right. ओके, प्रेसे राइटिंग में हमें अगेन एक अनसीन पैसेज टाइप ही दिया होता है। देखो, प्रेसे और समरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। समरी में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखते हैं, प्रेसे में एक तरह से हम कॉपी पेस्ट ही समझ लो करते हैं। हम पैसेज की एक्चुअल जो लेंथ होती है उसको 1/3 साइज में रिड्यूस करते हैं। सो यानी प्रेसे वाला जब हम सॉल्व करेंगे, सो देर इज नो फॉर्मेट, आपका एक टाइटल होता है विच इज वेरी रॉ एंड ट्रू। मतलब आपको यहाँ पे क्रिएटिव टाइटल देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जो पैसेज बोल रहा है उससे आपको जो समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड आप टाइटल दे दो। एंड सपोज पैसेज लेट्स से 90 वर्ड्स का है, तो 90 का 1/3 कितना होता है? सीए स्टूडेंट्स जल्दी बताओ, 90 का 1/3 कितना होता है? 30। तो आपको 30 वर्ड्स में एक प्रेसे लिखना होता है। दैट्स इट, आपने टाइटल दिया, 30 वर्ड्स में लिखा। तो बेसिकली जो पैसेज में है, जो मेन इन्फो है, वही आपको इन्फो 30 वर्ड्स में रिड्यूस करके देनी है। उसमें आप अपना कोई आई थिंक, यू थिंक, वी थिंक नहीं करते हो।
थर्ड पर्सन नैरेटिव होता है, जो लिखा है बस उसी को वही इन्फो 30 वर्ड्स में रिड्यूस करके दे दो. इट्स लाइक आप एक कॉम्पैक्ट नोट्स बना रहे हो किसी के लिए. इसको ऐसे समझो कि जैसे सपोज कोई एब्सेंट था क्लास में, ठीक है. सपोज आज ध्रुव बोल के गया कि मेरा कल एग्जाम है, सो आई नीड टू लीव एंड ऑल दैट. सो ध्रुव चला गया, ठीक है. और सपोज वो किसी को कॉल करके ये पूछे कि अच्छा क्लास में क्या हुआ था. सो प्रेसेज दैट. देखो, एक होता है क्लास में बताने का कि अच्छा मैम ने ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया. हम ऑब्वियसली उसको कंसाइज करके ही बताते हैं ना, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करते. एक होता है हम उसमें ये बताते हैं कि मैम ये बताना चाह रही थी पर ये बताया पर मुझे समझ नहीं आया. हम उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डाल देते हैं. वो होती है समरी. बट प्रेसे इज नॉट समरी. तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं यूज करनी है. जो वहां लिखा है वही लिखना है. उसका मेन पॉइंट, उसका मेन एसेंस नहीं जाना चाहिए. मेन पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये प्रेसे राइटिंग है. 5 मार्क्स का आता है. अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको पैसेज पढ़ना है और फटाफट से काइंड ऑफ उसी में से कॉपी करके लिखना है. सबसे कम लिखना है बेसिकली अगर हम देखें तो. सो आई वुड प्रेफर कि अगर ये क्वेश्चन आता है और तुम कॉन्फिडेंट हो तो ये क्वेश्चन करके आओ. और अगर तुम्हें बाकी के इसके पार्ट्स, ग्रामर एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर का क्वेश्चन अगर तुम्हें आता है, देन नथिंग बेटर देन दिस. नथिंग बेटर देन दिस. मूविंग अहेड, लेटर्स पे आ जाते हैं. ठीक है. सारे लेटर्स का जो एक बेसिक फॉर्मेट है वो यही रहेगा बेटा. हमारे पास जॉब रिज्यूमे है, ऑर्डर प्लेसिंग है, हमारे पास बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर है. कोई भी इनफॉर्मल नहीं है, सारे फॉर्मल है जिसमें रिज्यूमे है, जॉब एप्लीकेशन, ऑर्डर प्लेसिंग है, कंप्लेन है, इंक्वायरी है, सेल्स है, प्रमोशन है. और एक वो लेटर था ना जिसमें पैसे वापस मांगने के लिए हम नोटिफिकेशन नोटिफाई करवाते हैं, वो है. ऐसे करके हमारे पास 5-6 लेटर्स हैं. सबका बेसिक फॉर्मेट एक ही है. अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, सबका बेसिक फॉर्मेट वही है. आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा 3 लाइंस में, नॉट मोर देन दैट. तो आप क्या लिखोगे वहां पे अगर आपका एड्रेस वगैरह तो गिवन नहीं होगा. सिंपल है, ABC हॉल, PQR रोड, दिल्ली. देन यू विल लीव अ लाइन, यू विल राइट डेट. सो कौन सा दिन है आपका ये वाला एग्जाम, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वाला. डेट डेट डेट, टेल मी डेट. टेल मी डेट. 26 जून. थैंक यू अंकित. हो गई आपकी डेट. आपने डेट अब से हर लेटर में जहां लिखनी है यही डेट लिखो. डेट लिखा, लीव अ लाइन, एड्रेस ही. आप किसको एड्रेस कर रहे हो लेटर? डायरेक्टर को, HR मैनेजर को, प्रोपराइटर को, सेल्स पर्सन को, ठीक है, या फिर आप परचेज मैनेजर को. आप किसको ये लेटर लिख रहे हो? परचेज मैनेजर को. आप जिसको भी ये लेटर लिख रहे हो आप बस उसके लिए उसका लिखोगे. एंड देन उसका एड्रेस भी 3 लाइंस में, वो कौन सी कंपनी का नाम एंड क्या. ये इन्फॉर्मेशन यूजुअली आपको दी हुई होती है. एड्रेस नहीं होता बट कंपनी का नाम होता है, तो आप वहां से लेकर और वही वंस अगेन फेक डेटा, फेक एड्रेस प्रोड्यूस करेंगे. देन यू विल लीव अ लाइन एंड यू विल राइट सब्जेक्ट. व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर. लिखोगे सब्जेक्ट, अंडरलाइन करोगे. यूजली ये हम कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन से. अगर आपको इंक्वायरी करनी है, सो इंक्वायरी रिलेटेड टू. कंप्लेन करनी है, कंप्लेन अगेंस्ट ऑर्डर नंबर, कैश मेमो नंबर.
सेल्स करना है, प्रमोशन करना है, जॉब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अगेंस्ट रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ सो एंड सो. सो ये हम बहुत एक फ्रेजल फॉर्म में हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं. Then we will leave. Then we will write sir, and we will leave. Okay. We will leave one line over here. We will write sir, and right from here we will start writing our letter. 3 paragraphs में usually letter होता है. हर letter का usually first para जो होता है वो intro para होता है. Basically, who are you and why are you writing this letter? ये दो WH family को आप आंसर करते हो, who and why. सेकेंड में डिटेल्स होती हैं. अगर आपकी कंप्लेन है तो आप ये बताते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या खराबी दे रहा है, इस वक्त क्या प्रॉब्लम है. ठीक है. और अगर आपका इंक्वायरी है तो आप ये पूछना, आप डिटेल में पूछते हो कि आप क्या क्या इंडिविजुअल आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं. अगर आपका सेल्स है तो आप बताते हो कि आपने क्या नया वेंचर जो आप उस पर बता चुके हो उसको डिटेल में एक्सप्रेस करते हो कि आपने कहाँ कहाँ पे ये वेंचर है, आप क्या, या आप क्या न्यू सर्विसेज या क्या न्यू प्रोडक्ट एज ऑन सेल दे रहे हो, क्या बेटर उस पे दे रहे हो डील पर. अगर आपका प्रमोशन है वंस अगेन तो आप यही बताते हो कि इस वक्त जो फ्री भी ऑफर है या कुछ डिस्काउंट है या कुछ एडेड सर्विस है तो आप कब तक दे रहे हो, किसको दे रहे हो, किस तरह से, किस कंडीशंस में दे रहे हो. एंड थर्ड पैराग्राफ एक कंक्लूडिंग पैरा होता है, वाइंडिंग अप पैरा होता है. कंक्लूडिंग पैरा होता है, वाइंडिंग अप पैरा होता है. बेसिकली इसमें आप सिर्फ कुछ नहीं करते हो, पूरे लेटर को समराइज करते हो. सो अगर जैसे कंप्लेन लेटर है तो आप ये बताते हो आप क्या एक्शन चाहते हो, आपका प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहते हो, कॉम्पनसेशन चाहते हो, एक्सचेंज चाहते हो, आप चाहते हो डिलीवरी हो जाए, आप चाहते हो कि जल्दी प्रोडक्ट आ जाए, आप चाहते हो कि अब नहीं मिला तो कैंसिल हो जाएगा. व्हाट एक्शन डू यू डिमांड, तो आप वो लिखते हो. ऑर्डर लेटर है तो आपने प्लेसमेंट के बाद आप ये बताते हो कि आपने कितना एडवांस दे दिया है या आप दोगे, या आप शिपमेंट कब तक चाहते हो, कैसी शिपमेंट चाहते हो, पैकेज में कुछ गड़बड़ी हुई तो कौन बेयर करेगा लॉस, आप चाहते हो कि कोई कम्युनिकेशन हो तो किस नंबर पे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये आप ऑर्डर लेटर में लिख देते हो. अगर इंक्वायरी है तो आप पूछ लोगे कि सारी इंक्वायरीज के बाद यू वांट द रिप्लाई एट द अर्लीस्ट, क्योंकि आप वेट कर रहे हो सो दैट आप एक साउंड डिसीजन ले सको उस चीज के रिगार्डिंग. सेल्स या प्रमोशन है तो वंस अगेन आप अपने प्रोडक्ट को यही बोलोगे कि बेस्ट डील्स हैं आपके लिए, हैं सिर्फ आप ही हो बस जिसके लिए हम ये डील्स दे रहे हैं, सो जल्द से जल्द इसको अवेल करने के लिए. ठीक है. जॉब रिज्यूमे का लेटर जो होता है ये इसका कवर लेटर बोलते हैं इसको, तो वो भी मैं बता देती हूँ एक बार कैसे लिखते हैं. जॉब रिज्यूमे का अगर कवर लेटर है तो आप वही सब ऊपर से फॉलो करोगे. फर्स्ट पैरा में आप इंट्रो दोगे कि आपने ये जॉब की जो वैकेंसी थी कहाँ देखी, कहाँ से पता चला, और आप कौन हो और आप अपने आप को अप्लाई करना चाहते हो. सेकंड में आप बताते हो डिटेल्स में कि आपका एक शॉर्ट बहुत कि आपकी क्या एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, और आप किस तरह के पर्सन हो. जैसे आपकी झूठी तारीफ जो आपको करनी है, कीन हो, एंथुजियास्ट हो, सेल्फ मोटिवेटर हो, आपने प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैंडल किए हैं, या आपने इतनी ट्रॉफीज या कुछ जीता है, या आप टीम बिल्डर हो, हाई स्पिरिटेड हो, जो भी झूठ झूठ अपने बारे में सब यहाँ लिख दो. थर्ड पैराग्राफ में अगर इसका है तो आप उसमें लिखते हो कि आप अपना सीवी अटैच किया है एंड यू वुड रियली लाइक टू मीट इन पर्सन टू डिस्कस द मैटर फर्दर. मतलब आप इंटरव्यू के लिए अदर वे राउंड कहते हो कि प्लीज मुझे बुला लो, प्लीज मुझे बुला लो. ठीक है, ये क्लियर हुआ. डियर सर और सब्जेक्ट के बाद, डियर सर के बाद आप लाइन छोड़ के लाइन छोड़ दो. अच्छा नहीं नहीं नहीं, सब्जेक्ट के बाद आप लाइन छोड़ दो, सर के बाद वही नेक्स्ट लाइन से ही कंटिन्यू करो. ठीक है. अब ने आपने 3 पैरास लिखे, हर पैरा के बाद आप एक लाइन लीव करेंगे सो दैट वो बहुत ही क्लियर क्लियर नीट आपका काम हो. देन यू विल राइट योर्स ट्रूली, you will sign, you will write your name in complete name and in capitals. मैं अभी अपना नाम लिख देती हूँ. इन केस आपकी कोई डेजिग्नेशन है तो आप वो यहाँ नीचे डेजिग्नेशन लिख देते हो.
इसको याद करने की भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, कौन बताएगा? जितनी भी फॉर्मल चीजें हैं वो कैसे रन करती हैं? यस, SND। दिल्ली में एक फ्लाईओवर है DND, दिल्ली नोएडा वाला, जो दिल्ली नोएडा कनेक्ट करता है, हम उसके D को रिप्लेस कर देंगे S से, वो बन जाएगा SND, विच मीन्स साइन, नेम, डेजिग्नेशन। तो आपकी जितनी भी फॉर्मल चीजें हैं वो हमेशा इसी ऑर्डर में एंड होंगी, इसी ऑर्डर में एंड होंगी। सिर्फ इसका एक रिज्यूमे वाले लेटर में थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी सब लेटर्स तो यहीं फिनिश हो जाते हैं। रिज्यूमे वाले लेटर में चेंज आता है क्योंकि ये कवर लेटर होता है उसका। ये लिखने के बाद आप मेन लेटर लिखते हो, जिसमें आप लिखते हो करिकुलम वीटे, और फिर आप अपने लेटर लिख, अपना रिज्यूमे लिखते हो। दो तरीके से बताया हुआ है, कौन से हैं वो दो तरीके रिज्यूमे लिखने के? कौन सा CV लिखने के दो तरीके बताए हुए हैं? दो तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, फंक्शनल एंड, कौन बताएगा? क्रोनोलॉजिकल। वेरी गुड। क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल वे से लिखते हैं। इसमें सबसे पहले आपका नाम जो होता है सेंट्रली अलाइन टॉप पे आता है। ओके, इससे कुछ हो गया है? ठीक है, आपने अपना नेम लिखा टॉप पे, अपना फोन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, ये सेंट्रली अलाइंड आपने लिखना है। ठीक है, देन आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हो कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका लाइफ में? टू सी योर सेल्फ हियर, टू एसोसिएट योर सेल्फ विद द गुड फर्म विच कैन प्रोवाइड यू फुलफिल योर गोल्स, हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल्स, क्या कुछ भी झूठ लाइन, बेसिकली झूठ लाइन लिखनी है। और एक लाइन होती है जो सब में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जो बुक में भी दी हुई है, आप वही लाइन कॉपी पेस्ट कर सकते हो सब में। देन उसके बाद आप अपनी करियर समरी लिखते हो या एजुकेशनल समरी लिखते हो। हम ये हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, इसमें क्रोनोलॉजिकल नहीं, हायरार्की ऑर्डर फॉलो करते हैं, टॉप टू बॉटम। मतलब लास्ट अगर आपकी डिग्री 2012 की है तो आप 2012, 2012, 2008 जो भी है आप इस ऑर्डर में फॉलो करके लिखते हो। ऐसे ही आप अपनी प्रोफेशनल समरी लिखते हो इन केस अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं करते हो, तो उसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन की तरह अप्लाई कर रहे हो तो अभी तक आपने क्या क्या कोर्सेज किए हैं और कहाँ कहाँ पे आपने जॉब कर रखी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, देन आप अपनी स्किल्स लिखते हो, स्किल्स एंड हाइलाइट्स में हम अपनी जॉब्स एंड अपना हॉबीज, अपनी लैंग्वेजेस नोन, अपने कोई और टैलेंट्स, अवार्ड्स जो आपने अचीव किए हैं वो लिख देते हो। ओके, देन आता है रेफरेंसेस। तो आप दो लोगों के नाम विद डेजिग्नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हो कि कौन वो दो लोग हैं जो आपकी रेफरेंस आपको वाउच कर सकते हैं। एंड देन एंड में एक डिक्लेरेशन आती है, I hereby confirm that the information provided above is true to the best of my knowledge. Then again you will sign, you will write your name, complete name in caps, and you will write date. ये है हमारे
लेटर्स, लेटर्स में मैं बोलूँगी एक दो लेटर्स हर तरीके के, दो तीन लेटर्स पढ़ के एक आध लेटर भी लिख लोगे तो इट इज़ अ डन डील, क्योंकि वही एक बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए कि क्या लाइंस होनी चाहिए, बाकी सब डन डील है, यू कैन ऑलवेज ऑलवेज डू इट। यस, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में भी ऊपर एक टाइटल या हेडिंग आती है, दिस शुड बी कैची, इंटरेस्टिंग, मतलब आप इसमें क्रिएटिव हो सकते हो। यहाँ पे यू नीड टू शो योर क्रिएटिव स्किल्स, कुछ अच्छा कैची सा, बहुत ही वेग नहीं बट टॉपिक से रिलेटेड बट अच्छा लिखना इज अ गुड टाइटल। नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट रॉ लिख दो, बट दिस इज गोइंग टू बी अ गुड टाइटल। एंड देन एक बाय लाइन आती है जिसमें आप लिखते हो बाय, बाय मीन्स आप ये लिखते हो किसने ये आर्टिकल लिखा है, तो वो आप यहाँ लिख देते हो। ठीक है, आर्टिकल मॉडल 3 पैराग्राफ्स में ही लिखा जाता है, बट आप 3 से एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मिनिमम 3 होने चाहिए। ठीक है, थर्ड पर्सन नैरेटिव होता है ये, मतलब आई वी यू दे नहीं लिखते हैं, कोशिश करो ना ही आए। पैसिव सेंटेंस बनाओगे तो इजी हो जाएगा। पैसिव सेंटेंसेस इजी रहते हैं इसमें, पैसिव सेंटेंसेस बनाओ, थर्ड पर्सन नैरेटिव लिखो। आर्टिकल के टॉपिक्स यूजुअली तुम, ऐसा नहीं होता, कई बार हमारे पास कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे हम लिखेंगे कैसे, हमें क्या पता सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट पैरा में जो आप इंट्रो देते हो, ट्राई टू रिलेट टू द टॉपिक इनडायरेक्टली, मतलब कमेंट करते हुए। आर्टिकल का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है दैट पीपल शुड बी शेकन आफ्टर रीडिंग योर आर्टिकल एंड दे शुड somehow फील कि ओ हाँ ये भी एक साइड है, ये भी एक सच है और हम इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे थे। आई मीन यू नीड टू जॉल्ट पीपल आउट ऑफ देयर सीट्स, यू नीड टू वेक देम अप। सो डेफिनेटली फॉर दैट पर्पस आपका जो आर्टिकल होना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ या टाइटल इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए दैट इफ यू आर अ रीडर, आपका मन करे टाइटल पढ़ के आर्टिकल पढ़ने का और फिर आप पढ़ो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ इनडायरेक्टली आप बात करो। सेकंड में वही, अगर किसी चीज के प्लस माइनस है, प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। थर्ड में आप कंक्लूजन में लाओगे, तो कंक्लूजन में कभी आई फील, आई सजेस्ट कुछ नहीं, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जो आप बेस्ट वे से प्रेजेंट कर सकते हो, जो आपको लगता है कि पीपल शुड थिंक ओवर, वो आप लिख दो। आई वी यू दे करके नहीं लिखेंगे, पैसिव यूज करेंगे। क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं, कोटेशंस यूज कर सकते हैं, स्लोगन्स यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी आप स्टार्ट भी क्वेश्चन पे कर सकते हो, एंड भी क्वेश्चन पे कर सकते हो, एंड यू कैन डू एनीथिंग। ऐसे करके आप बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो। बट अगेन yes, rhetorical questions, definitely खुशी, rhetorical questions, rhetorical question means जिनका आंसर राइटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, but he would just wants you to think it over, that is the point, he really wants you to think it over, he doesn't want a straightforward answer. Okay, that is article. Now coming to report writing. रिपोर्ट राइटिंग भी थर्ड पर्सन नैरेटिव है, जबकि रिपोर्टर ही लिखता है बट थर्ड पर्सन नैरेटिव है। टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन। बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है दोनों में, बट वैसे सेम होती है, वही टाइटल आएगा,
देन बाय लाइन आएगी, बाय राइटर के नाम के बाद आप न्यूज़पेपर का नाम लिखते हो, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट है। यहाँ आप लिखते हो प्लेस और डेट, और फिर आपका फर्स्ट पैरा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। प्लेस एंड डेट में सपोज आप पेपर जो है यूजली ऑल ओवर इंडिया में नेशनल डेली है या दिल्ली का न्यूज़पेपर है, बट क्या बोलते हैं, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट आप मेंशन कर रहे हो ये कानपुर का है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे कानपुर एंड सपोज कल का इंसिडेंट है तो कानपुर 25 जून एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। फर्स्ट पैरा में आप इसमें WH फैमिली को केटर करते हो, व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, who was happened, whom did it happen to, who was responsible in case you know, and why in case you know that also. तो आप WH फैमिली को केटर करते हो, that this happened, that happened, this way happened, थर्ड उसमें थर्ड पर्सन में। सेकेंड पैराग्राफ में आप डिटेल्स देते हो। देखो रिपोर्ट राइटिंग में ऑफन बच्चे क्या करने लगते हैं, डिस्क्राइब द सीन टाइप, डिस्क्राइब द इवेंट टाइप करने लगते हैं, वो स्टोरी राइटिंग करने लगते हैं, ये अब ये अब ये अब ये, वो नहीं करना होता है हमें रिपोर्ट राइटिंग में। प्लीज मेक इट श्योर, प्लीज मेक इट श्योर कि वो हमें इसमें नहीं करना होता है, ठीक है। हमें इसमें सिंपल जो भी इवेंट हुआ है, जो भी एक्सीडेंट या इवेंट है उसकी डिटेल्स बतानी है। सपोज हम एक एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं तो हम उसमें डायरेक्टली बता देंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड कितने विक्टिम्स हैं, कितने हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कितना सेफ हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ एंड कैसे हुआ। थर्ड पैराग्राफ में हम सिंपल सी जो बात है वो कंक्लूजन लिखते हैं। इसमें हम सोलेशियम मीनिंग कॉम्पनसेशन, अगर एक्सीडेंट केस है या कोई इस तरह से है, कॉम्पनसेशन अनाउंस कर देते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना दिया। कोई आई विटनेस का अगर आप डायलॉग लिखना चाहते हो कि आई विटनेस ने आपसे कहा, तो वो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही स्पीच में लिख सकते हो, इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी स्पीच चलेगी, बोथ स्पीच एक्सेप्टेड, ठीक है। इसमें लिखोगे अगर रिपोर्ट मैगजीन की है सब कुछ सेम चलेगा सिवाय इसके, बस ये चीज नहीं होगी, सीधा फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा, ये न्यूज़पेपर में आएगा, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। क्लियर? ईमेल देख लेते हैं। ईमेल राइटिंग बॉक्स में आती है, ठीक है। फ्रॉम टू सब्जेक्ट, ये तीन चीजें लिखनी है। फेक ईमेल आईडीज आपको लिखना है abcd@gmail.com, pqr@gmail.com टाइप करके आपको फ्रॉम एंड टू लिखना है, एंड सब्जेक्ट आप अगेन क्वेश्चन से कॉपी कर सकते हो, दैट व्हाई आर यू राइटिंग दिस। इसमें सीधा डियर सर मैम करके आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो इसमें भी मॉडल तो 3 पैराग्राफ्स ही होते हैं, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, 2 में भी अगर आपकी बात खत्म हो रही है, यूजली ये फॉर्मली आते हैं तो आप लिख सकते हो। आप किसी मीटिंग के इन्फो दे रहे हो, आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में दे रहे हो, आप किसी और पर्पज से लिख रहे हो, ऑफिस के किसी कॉरेस्पॉन्डेंस से, देखो क्योंकि नाम ही पेपर का है ना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, सो आप क्या पर्पज से उसको एक्सचेंज कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, वो आप यहाँ पे इन्फो लिख दोगे। अगर आपको की में देना है, टैब्स में देना है, बोल्ड्स में देना है, वैसे लिखो, कैसे भी आप इसको लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। एंड यूजली इसमें जो फ्रेजेस लाइक लास्ट में होते हैं, होपिंग टू सी यू सून टाइप्स, और सी यू इन द मीटिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर टाइप्स, कुछ भी है वो आप इसमें देते हो। और एंड में बेस्ट विशेस एंड रिगार्ड्स, कुछ भी लिख सकते हो, बेस्ट विशेस एंड रिगार्ड्स, रिगार्ड्स ओनली, बेस्ट करके, ऑब्वियसली साइन, नेम, कंप्लीट नेम जाएगा वही, एंड डेजिग्नेशन, मतलब वही वाला फॉर्मेट इसमें भी फॉलो होगा, वही वाला फॉर्मेट इसमें भी फॉलो होगा, ईमेल में भी। ईमेल तक सबको क्लियर है? नो डाउट्स? अब हमारा रहता है
मीटिंग, मेमो, सर्कुलर, राइट? मीटिंग, मेमो, सर्कुलर, यही रहता है ना? एक दो, हाँ आई थिंक। और कोई राइटिंग एक तो नहीं भूल रही हूँ मैं? ठीक है। मेमो, मीटिंग एंड सर्कुलर्स भी बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है। बल्कि मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मेमो, सर्कुलर्स और ये सब आए तो तुम लोग अटेम्प्ट करो, इजी होती है। आर्टिकल एंड रिपोर्ट में सोचना बहुत पड़ता है और थर्ड पर्सन होता है तो सेंटेंस फ्रेम मुश्किल होते हैं और 5 मार्कर्स के लिए बहुत लिखना पड़ता है। इनमें कम लिखना पड़ता है और इजी टू अटेम्प्ट होते हैं। और ज्यादा मतलब जो आपने कुछ लैंग्वेजेस, कुछ अपने सेंटेंसेस थोड़ा क्रैम किए होंगे, याद रखे होंगे, जो आपने प्रैक्टिस में यूज किए होंगे, उसी के आसपास कहानी घूमती है, तो बहुत कुछ अलग आपको सोचना नहीं पड़ता एंड ज्यादा लिखना नहीं पड़ता। तो आई वुड प्रेफर कि अगर ये चीज में आप कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर है सो प्लीज प्रेफर दिस। ठीक है। मेमो यूजली एक पर्सन के लिए होता है या एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए चल रहा है, तो आप उसके हेड मैनेजर को या उसको लिखते हो। ये मेमोज उस पर्पस के लिए होते हैं। सर्कुलर्स सबके लिए होता है, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में सर्कुलर्स आते हैं, पेपर में सर्कुलर्स आते हैं, दैट मीन्स इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। मेमो किसी पर्टिकुलर को इशू होता है। सो ये बताओ मुझे, ये कौन बताएगा मेमो का फॉर्मेट क्या होता है? मेमो, सर्कुलर और क्या बचा है? मीटिंग। ये थोड़ा सा तुम लोग पार्टिसिपेट करके बताओगे। बताओ क्या लिखते हैं सबसे ज्यादा टॉप पे? डेट राइट साइड, ओके आदित्य। मेरी राइट मतलब तुम सर्कुलर नंबर क्यों बता रहे हो मुझे? मैं तो तुमसे मेमो पूछ रही हूँ। बट एटलीस्ट तुमने आदित्य ट्राई किया, कुछ बताया, दैट इज वेरी गुड। मेमो में सबसे ऊपर क्या आता है? यस एग्जैक्टली। मेमो में सबसे ऊपर आता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंड एड्रेस टाइप आता है, जैसे एबीसी कॉरपोरेशन लिमिटेड, पीक्यूआर रोड, मुंबई। फिर आप लिखते हो कि ये इंटर ऑफिस मेमो है या इंट्रा ऑफिस मेमो है। इंटर ऑफिस की विद इन उस ऑफिस के लिए है, इंट्रा ऑफिस की किसी दूसरी ब्रांच के लिए है ये। ठीक है। फिर आप मेंशन करते हो कि आप कब लिख रहे हो, तो ये आपके आ जाती है डेट। अच्छा सॉरी, डेट ऊपर आती है यहाँ पे, डेट। और फिर आप नीचे मेंशन करते हो, राइट। फिर उसके बाद आप मेंशन करते हो कि ये पर्टिकुलरली मेमो जो आप इशू कर रहे हो ये किसके लिए है। टू मतलब फ्रॉम। और इनकेस अगर आप किसी को सीसी करना चाहते हो तो ये किसके लिए है और क्या सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो आपको इसमें भी मेंशन करना पड़ेगा। वही फेक, जैसे टू कृष्णवीर गुप्ता। आई एम सॉरी, नो ऑफेंस, ये मुझे सडनली नेम याद आया तो मैंने लिख दिया। मैनेजर, फ्रॉम सीनियर मैनेजर, केवाईसी भटनागर। सब्जेक्ट आपने जो भी देना है। फिर आप इसमें यहाँ से अपनी पूरी बात स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि
3 पैराग्राफ्स वाला कोई सीन नहीं है, बट अपनी बात कही 2 से 3 पैराग्राफ्स में फॉर्मल बात कहेंगे, दैट वुड बी ऑल राइट फॉर दिस। एंड जब आप इसको एंड करेंगे, वंस अगेन जब आप एंड करोगे तो वही आपने बीच में बॉडी लिखी, एंड करोगे तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग नहीं आएगी, सिर्फ आपके साइन, नेम एंड डेजिग्नेशन आएगा। सिंपल। यस, क्लियर? Now just excuse me for a minute, I need to drink water and my bottle is there. Yes, thank you so much. Next comes circulars. सर्कुलर भी बॉक्स में ही आता है, सर्कुलर भी इजी होता है। आप यहाँ पे सर्कुलर नंबर लिखते हो, डेट डालते हो, लिखते हो किसके लिए, फॉर ऑल एम्प्लॉइज, और अपनी 2-3 पैराग्राफ्स में, कई बार इसमें पॉइंटर्स भी आ जाते हैं सब, मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंगली, तो उससे कुछ मैटर नहीं करता, वो आप बता देते हो। और क्लोजिंग करते वक्त वही SND, कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग नहीं होती है इसमें भी। देन कम्स आवर लास्ट थिंग, मीटिंग्स। ठीक है ना? तो मीटिंग्स कैसे लिखते हैं? मीटिंग्स बॉक्स में नहीं आती है, मीटिंग्स आप लिखते हो सिंपली डेट ऑफ मीटिंग, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन था उस मीटिंग को अटेंड करने में, टाइम मीटिंग का, कितने बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, कितने बजे एंड हुई, तो हम वो टाइम जरूर मेंशन करते हैं। ठीक है, सो हम डेट लिखते हैं, कौन से डे की, पार्टिसिपेंट सारे हम मेंशन कर देते हैं, एंड हम टाइम ऑफ मीटिंग मेंशन करते हैं उसमें कि कब मीटिंग कितने बजे स्टार्ट हुई। उसके बाद हम मीटिंग का वो पूरा जो मीटिंग का एक काइंड ऑफ समराइज्ड वे हम लिखते हैं। तो हम उसमें ये बताते हैं कि जो मीटिंग हुई है कि ये कितने बजे, जो क्या क्या था, जैसे सपोज इट स्टार्टेड विद मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स स्टार्टेड विद मीटिंग एंड ही टोल्ड दिस, वाई ने ये किया, जेड ने ये किया। आप इसमें फेक नेम्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको कोई उसमें नेम्स नहीं दिए होंगे क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली आप उसमें ये नेम्स लिख सकते हैं। आपको पूरी डिटेल नहीं बतानी, अब वो उठा, वो बैठा, उसने पानी का ग्लास पकड़ा, उसने पीपीटी दिखाई, मेजर जो बात है, मेजर जो कंटेंट है, आपको सिर्फ वो ही प्रोवाइड करना है उसमें। सो मिस्टर एक्स स्टार्टेड द मीटिंग, ही स्पोक अबाउट दिस, एवरीवन अपलॉडेड और एवरीवन अप्रिशिएटेड और एक्नॉलेज्ड द सेम, और उस पर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, चेयरपर्सन ने एंड में वोट ऑफ थैंक्स दिया, या Q&A के लिए वो ओपन हुआ। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप इसमें फेक इन्फो ड्रॉ आउट कर सकते हैं। ये भी वंस अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चन होता है करने के लिए, अगर आता है पेपर में तो वंस अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें एंड में एक ATR होती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो इसमें एंड में आप ऐसे लिखते हो कि ठीक है ये डिस्कस हुआ है, और ATR जो है विल बी सबमिटेड ऑन आफ्टर 10 days और 15 days, जो भी मीटिंग की डेट है
उसे 10-15 डेज बाद आप ATR की सबमिशन लिखते हो। वो इसलिए होता है कि ये होता है कि जो मीटिंग जो हमने की है उसका क्रक्स क्या है, उसका आंसर ये है कि हाँ हमें ये काम करना पड़ेगा, ये हमें उसके बेसिस पे ये एक्शंस लेने पड़ेंगे, तो हम ATR बता देते हैं। और फिर कई बार क्वेश्चन में आपको ATR लिखने के लिए भी बोला होता है, तो आप ATR बता देते हो कि एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन 26 एंड एज पर द डिस्कशन फॉलोइंग ATRs हैव बीन टेकन। तो उसमें आप पॉइंटर्स में बता देते हो कि 3-4 चीजें मीटिंग के अकॉर्डिंगली ये फर्दर एक्शन लिए गए और ये उनका फाइनल रिजल्ट है। क्लियर है राइटिंग स्किल्स? बोलो, राइटिंग स्किल्स क्लियर है सबको? कोई इशू राइटिंग स्किल्स में? कर लोगे राइटिंग स्किल्स सब प्रैक्टिस? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आती है हमारी ग्रामर और कम्युनिकेशन का चैप्टर। तो हम अपनी PDFs पे आ जाते हैं। ठीक है, सो ग्रामर में जो सिनोनिम एंटोनिम है उसका तो हमें थोड़ा सा मगअप ही करना पड़ेगा, और जितनी बेटर हम अपनी वोकैब करते रहेंगे हमें उतना फायदा है, क्योंकि वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। बट हाँ, वंस अगेन आई वुड से जो मैंने वर्ड्स जो बुकलेट में हमने डिस्कस किए हैं वो करके जरूर जाना। ठीक है, बचे एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको हम देख लेते हैं एक बार। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लेते हैं। और ईडियम्स का भी वही है, उसमें मीनिंग्स हैं, एक बार वो रिवाइज करो, वो समझो, और फिर ऑब्वियसली उसके बाद हम मतलब आ तो कहीं से भी सकता है, ऐसे तो एक्टिव पैसिव का सेंटेंस भी कहीं से आ सकता है, बट देयर इज अ रूल, तो हम रूल तो वो सब में ही सेम अप्लाई होगा ना, इसलिए। सो क्विकली मैं उस पे आ रही हूँ, एक्टिव पैसिव और उस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। इससे भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, दैट इज मोर देन इनफ। सो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये है कि जो एक्टिव पैसिव है वो वॉइस का कमांड चेंज होता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूरी स्पीच चेंज होती है। ठीक है, एक्टिव पैसिव का रूल ये है कि टेंस विल रिमेन सेम, किसी भी हालत में टेंस रिमेन जो है इट रिमेन्स द सेम। द ओनली थिंग विच चेंजेस इज कोई भी वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो वो अपनी थर्ड फॉर्म में चला जाता है, और टेंस हमेशा सेम रहता है। उसके लिए हम अगर इज है तो इज ही लगाते हैं, मतलब अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस यूज करते हैं, और फ्यूचर है तो फ्यूचर यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस शो करना होता है तो हम बीइंग लगाते हैं, और पास्ट टेंस शो करना होता है तो हम बीन लगाते हैं। चेंज जो सेंटेंस में होता है, जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, जब पैसिव में आता है तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है बाय लग के। दैट इज द ओनली चेंज। जैसे कुछ जो सेंटेंसेस जो चेंज नहीं होते हैं वो जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, या फिर वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे एक आध हम सेंटेंस कर लेते हैं क्विक रिवीजन के लिए। जैसे रोहित wrote a story on the wall, a story was written by Rohit on the wall. Okay, if someone can tell me Sanya sang a song. Sanya sang a song. Who will tell? A song was sung by Sanya. Very good. वेरी गुड। एक्टिव पैसिव में सिर्फ बाय लगता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का इंटरचेंज होता है, टेंस हमेशा सेम रहेगा।
टेंस हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में चला जाएगा. कॉन्टिन्यूएशन के लिए बीइंग यूज करेंगे और उसके लिए परफेक्ट के लिए बीइंग यूज करेंगे. दैट इज द ओनली थिंग. यस, याद आ गया एक्टिव पैसिव थोड़ा थोड़ा, कुछ बल्ब जला यहाँ से. ये पूरा 40 मार्क्स का बिल्कुल जिसको कहते हैं ना वो है निचोड़. 40 मार्क्स बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में है. कमिंग टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल देख लो. डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट में जाता है, पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है और पास्ट परफेक्ट नो चेंज. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट परफेक्ट अगेन नो चेंज. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज. यस, ये ग्रामर के की रूल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के. उसके बाद प्रोनाउन के चेंजेस एज पर द सेंटेंस होते हैं. प्लेस एंड टाइम के जो चेंजेस होते हैं जैसे कि हेयर, देयर, टुडे, दैट डे, टुमारो, the day after or the following day, yesterday, the previous day, now, then, ये सब चेंजेस इसमें कुछ और होते हैं. इसमें स्पीच में दैट लग जाता है बीच में टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज. Just a second. Okay, thank you. So ये कुछ चेंजेस होते हैं इसमें. अगर सेंटेंस है जैसे वही यूनिवर्सल ट्रुथ जो होगा, बेसिक हैबिट्स जो होंगी, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो और चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है. जैसे इसमें सिंपल है दैट आई विल कम टू स्कूल टुमारो. शी सेड I will come to school tomorrow. So she said that she would go to school the next day. चेंजेस करके दैट लगा के हम वो सेंटेंस लिख देते हैं. जो उसमें और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जैसे ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का होता है, क्वेश्चन होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं. उन सब में भी चेंजेस होते हैं. बाकी से ये सारे चेंजेस सेम रहते हैं जो टेंस के होते हैं या
जो हमारे प्लेसेस के होते हैं, प्रोनाउंस के होते हैं, वो सब वैसे ही रहते हैं, सिर्फ कुछ चेंजेस होते हैं जो हम अभी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. आई थिंक सबने एक एक बार एटलीस्ट प्रैक्टिस भी नहीं की है तो रिकॉर्डिंग्स तो देखी है हमने, या कोई ऐसा भी है जो बिल्कुल ही ब्लैंक है, मतलब आज इंग्लिश से हाय हेलो हो रहा है. So please do tell me. I mean, that is, I'm not going to scold you or something. I just really want to know that what am I dealing with, because then I'll be able to guide you in a better way. क्योंकि अभी मैं लेके चल रही हूँ कि तुम लोगों को एक रफ आइडिया है, हाँ प्रैक्टिस नहीं की है, इतना वो नहीं है, बट यू नो इट. सो ऐसा अगर कोई है, सो डू लेट मी नो. ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे हम आ गए हैं. हमने सेंटेंसेस देख लिए थे, ठीक है, डेक्लेरेटिव वाले. तो अब हम आगे के सेंटेंसेस देख लेते हैं. जैसे कि ये आ गए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में. एक्सक्यूज मी. जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें दैट नहीं लगता, उसमें टू लगता है, और जब टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव वर्ब का फॉर्म ले लेता है और वो एज इट इज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कॉपी पेस्ट हो जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल में है, द मेड सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क एट वंस. सो द मेड ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू फिनिश द वर्क एट वंस. The teacher said to the student, please study properly. The teacher requested the student, क्योंकि please है तो वो वहाँ पे emotion में चला गया, हमारे reporting verb में चला गया. requested the student to study properly. ठीक है, ये imperative sentences का हो गया. interrogative में two types of interrogative questions sentences होते हैं. one which are general questions like WH family से usually होते हैं, what are you doing, where are you going and all that. जो questions verb से start होते हैं, is, am, are, has, have, इनसे, do, does, did से, जिसमें usually writer ये पता कर speaker ये पता करना चाहता है that whether it is an affirmative answer or it results in a negative one. simple yes और no में. तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं उनके चेंजिंग में और WH फैमिली के चेंजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. WH फैमिली एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाती है, दैट नहीं लगता है. सिर्फ सेंटेंस को, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल है कि किसी भी तरह का सेंटेंस हो हमें उसे सेंटेंस में ही चेंज करना है, सिर्फ वो उतना चेंज उसमें होता है. इफ येस और नो वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें इफ और वेदर लगता है. सो बेसिकली दैट इसमें भी नहीं लगता, इंपेरेटिव में भी नहीं लगता, इसमें भी नहीं लगता. और हर टाइप ऑफ सेंटेंस हो, चाहे डिक्लेरेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, हमें हर किसी को सेंटेंस फॉर्म में चेंज करना है. लाइक सानिया आस्क्ड आर यू कमिंग विद देम. सो इसका आंसर सिंपली यस या नो होगा. सो ये चेंज हुआ, सानिया आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग विद देम. He said to me, what are you doing? So he asked me what I was doing. Simple. सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी चेंज करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन से उसको सेंटेंस फॉर्म में लेकर आना है. दैट इज वाई. नाउ कमिंग टू एक्सक्लेमेटरी वन. एक्सक्लेमेटरी में जो इमोशंस होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब में चले जाते हैं, जैसे प्लीज वाला गया था. सिमिलरली सो इमोशंस जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब में चले जाते हैं और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप दैट लगा के जो जनरल जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस करते हो आपको वैसे ही चेंज करने हैं. सो द रिपोर्टर सेड, alas many lives have been lost due to tsunami. The reporter exclaimed sadly because alas was there. Sadly that many lives had been lost due to tsunami. तो ये भी चेंज करना बहुत इजी होता है. The foreigner said, what a man Obama is. So the foreigner exclaimed in wonder that Obama was a great man. Usually sentences
सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस के ही फॉर्म में होते हैं, क्योंकि हम इस तरह के एक्सक्लेमेशंस यूजुअली प्रेजेंट टेंस में ही लेते हैं, तो इसको चेंज करना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि एक स्टेप अहेड हमें पास्ट में ही जाना होता है. क्लियर? क्लियर अप टिल हियर? राइटिंग के बाद ग्रामर क्लियर हुई. जो हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, प्रोवर्ब्स है, वो तो आपको मतलब काइंड ऑफ मग अप करना पड़ेगा. वो एक ऐसी चीज है इंग्लिश में जो तुम्हें थोड़ी मग अप करनी पड़ेगी. यस यस अनु, कुछ तो बोल दो, मुझे भी पता चले तुम लोग हो. चलो, ग्रेट. अब कम्युनिकेशन चैप्टर पे आ जाते हैं. जस्ट अ सेकेंड. देखो, सारी वोकैब है, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि सिर्फ तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बट गारंटी फिर भी नहीं है कि ऑब्वियसली यही पूछा जाएगा. कम्युनिकेशन चैप्टर से टोटल में देखें तो हमारे 3 क्वेश्चंस आते हैं, जो 5 to 6 मार्क्स के आते ही आते हैं. अच्छा, उसी वाले में था. पेज नंबर इज 155. There is no way to come quickly to that, but I'm trying my best कि जल्द से जल्द आ जाऊं. दिस इज द लास्ट थिंग. उसके बाद क्या लग रहा है अभी इंग्लिश में, अभी यहाँ तक हमें क्या फील हो रहा है, कि आर वी फीलिंग कॉन्फिडेंट? हमें लग रहा है कि हाँ हो जाएगी, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्विक रिवीजन से फटाफट से काइंड ऑफ रिकैप्चुलेट हो गया सब कुछ. अब यू नो हो सकता है, समझ में आ रहा है. राउंड 1 मीनिंग रिया? अच्छा, राउंड 2. बेटा, सर ने तो ऑफलाइन ही प्लान किया है, क्योंकि पेपर्स तो इवेंचुअली तुम लोगों को ऑफलाइन ही देने हैं जाके. तो आई थिंक इट्स बेटर, जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हारा फोबिया ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जाम इन दैट एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ तुम्हारा कवर अप हो जाएगा. नहीं, आई मीन इट्स गुड ओनली.
आई नो लॉ से ज़्यादा आ रहा है, लॉ थोड़ा सा तुम लोगों को ट्रबल सम, मतलब वहां पे तुम लोग मुझे लगता है फंस ही जाते हो टाइप्स। बट फिर इसलिए तो इंग्लिश को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है कि टुगेदर हम इस पेपर को क्रैक कर लें। चीटिंग करने की सोच रहे थे आदित्य, पेपर में कैसे होगी? And I know, I'm sure about all of you that you people will be able to crack it. कम्युनिकेशन चैप्टर की भी मैं बात करूं तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन चैप्टर भी एक ऐसी चीज है जो मैंने तुम्हें ट्रिक भी बताई थी, जो लोग पहले से अटेम्प्ट करे थे। 5 बार रीडिंग करो एवरी डे वंस, एक हफ्ते 5 बार रीडिंग करो। 5 बार थरो रीडिंग, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से, थरो रीडिंग रोज इवनिंग में जब तुम्हें लगे अच्छा सब हो गया अब कुछ नहीं तो चलो ये रीड करने बैठ जाते हैं। 5 बार रीडिंग करनी है एंड 6th टाइम यू विल फाइंड दैट हाफ ऑफ द चैप्टर तुम्हें ऑलरेडी आता है, थरोली आता है। ठीक है। सो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन की पहले डेफिनेशन है जो हमें आनी चाहिए, दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, राइट, एंड इन रिटर्न गेटिंग अ रिप्लाई ऑफ द सेम, दैट इज कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, वो हमें आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास है कम्युनिकेशन चैनल्स के बेसिस पे 3, पर्पस एंड स्टाइल के बेसिस पे 2। तो हमें इसका भी बाइफिकेशन पता होना जरूरी है, या बिजनेस इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये जनरल इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश में रिक्वायरमेंट क्या है, उसका पर्पस। अब उसी के बेसिस पे वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन आ गया, ओरल आ गया। ठीक है। एंड ओरल के कुछ एसेंशियल्स आ गए, एसेंशियल्स पार्ट। सो इससे जो क्वेश्चन आता है तुम ये मत सोचना कि पूरा का पूरा एक बार में पूछ लेंगे, बीएसटी की तरह पार्ट्स में पूछते हैं, जैसे वर्बल ओरल में डिफरेंस पूछ लेंगे, वर्बल रिटन में डिफरेंस पूछ लेंगे, खाली रिटन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, खाली ओरल की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, इंडिविजुअल भी आ जाता है। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। एसेंशियल्स बताने होंगे, प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग, स्पोकन ग्रामर की ओरल में ये सब चीजें कहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा सा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है और उसके सब पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे फिजिकल नॉन वर्बल है, पैरा लैंग्वेज है, एस्थेटिक है, अपीयरेंस है, सिंबल्स हैं, ये हमें उसके सब पार्ट्स हैं, ये भी इंडिविजुअली आते हैं या डिफरेंस बिटवीन एनी टू करके आ जाता है। तो जो अब तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं ज्यादातर उसी में से रिपीट होता है, तो उसी पे फोकस करो, जो अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी क्वेश्चंस के बेसिस पे याद करो। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है उसके बारे में, एंड देन वो जो उसके बेसिस पे पर्पस एंड स्टाइल के बेसिस पे फॉर्मल इनफॉर्मल थे, उसका डिवीजन हुआ हुआ है। फॉर्मल के टाइप्स बता रखे हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। इनफॉर्मल के बताया हुआ है। इसमें ये जो ग्रेप वाइन है एम्प्लॉयज का, ये पढ़ना जरूरी है। नेटवर्किंग जो लास्ट पार्ट है कम्युनिकेशन का, इसमें चैनल्स का डायग्राम्स है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, स्टार एंड ऑल दैट क्या होती है, तो उसका डायग्राम जरूर करके जाना एंड मेक श्योर दैट यू मेक इट। मैं ये नहीं बोल रही पेंसिल स्केल से बनाओ, बट नीट डायग्राम जरूर बनाना। वर्टिकल नेटवर्क कैसे होता है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बिलो। सर्किट नेटवर्क कैसे होता है, एक ही लेवल पे लोग बैठ के कैसे बात करते हैं। चेन नेटवर्क क्या है, व्हील एंड स्पोक है, स्टार नेटवर्क, ये 5, ये भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। सो 5 to 6 मार्क्स इस चैप्टर से आता है, इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन तुम स्किप नहीं कर पाओगे क्योंकि 8, 9, 10, 11 का पार्ट ए जो होता है वो यही क्वेश्चन आता है, वो यही क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर हमें जो मैंने वे बताया है उससे याद करना है। लाइक 5 डेज, अभी भी बहुत टाइम है, 5 डेज तुम कंटिन्यूसली इस चैप्टर को पढ़ो। नेक्स्ट वीक फिर 2-3 दिन के लिए भूल जाओ, नेक्स्ट वीक यू विल फाइंड व्हेन यू विल स्टार्ट री रीडिंग इट अगेन कि तुम्हें ऑलरेडी बहुत कुछ आता है इस चैप्टर में। सो सिर्फ थरो रीडिंग से ये चैप्टर अंदर चला जाएगा, और फिर जब प्रैक्टिस करोगे, होमवर्क करोगे या पेपर दोगे या इसके बैक क्वेश्चंस करोगे, यू विल फाइंड योरसेल्फ कि तुम्हें ऑलरेडी आता है, तो इतना मगअप नहीं करना पड़ेगा।
एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पता होने चाहिए, देन एवरीथिंग इज इजी. हाँ, प्रोवर्ब्स एंड ऑल दैट जो है वो तुम्हें एटलीस्ट जितने यहाँ पे हैं, प्रोवर्ब्स हैं, ईडियम्स हैं या सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, वो थोड़े से याद करके करने पड़ेंगे. इसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो है. ये भी इंडिविजुअल पॉइंट्स पूछते हैं या मैक्सिमम एक या दो पूछ लेते हैं, ओवरऑल में पूछ लेते हैं कि कोई दो बता दो, नॉट मोर देन दैट. ऐसे नहीं पूछेंगे कि एक ही बार में पूरा का पूरा पूछ लेंगे, वो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. सो काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम बर्डनिंग योरसेल्फ अप कि नहीं ये सारे एक साथ याद करने हैं, इंडिविजुअली करो. जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के वो बता रखे थे हमें हाउ टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो उसके बैरियर्स भी बता रखे हैं कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन करने में हमें क्या क्या डिफिकल्टीज या क्या बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रह पाती है. चैप्टर वैसे तुम्हें दिख रहा होगा बहुत सारा है, बट बहुत छोटे पॉइंटर्स है, बहुत छोटा छोटा पॉइंट्स है जिससे हम ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं. नेटवर्किंग है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, बैरियर्स हैं उससे पहले फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड वर्बल और फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल वाली है, एंड कम्युनिकेशन की डेफिनेशन. चैप्टर बहुत कंसाइज है, सो ये जल्दी वाइंड अप होगा. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर लॉ में तुम लोग जितना टाइम स्पेंड करते हो, मैं उतना टाइम इंग्लिश के लिए नहीं चाहती हूँ तुम लोगों से, बट हाँ इसको भी सब्जेक्ट कंसिडर करके एटलीस्ट थ्राइस अ वीक तुम इस पे भी फोकस करो. थ्राइस अ वीक एटलीस्ट. और सब्जेक्ट्स जो तुम्हारे अकाउंट्स हैं, दिस एंड दैट है, उनसे हम अगर 2 hours भी थ्राइस अ वीक निकालेंगे, 6 hours बेसिकली इन अ वीक, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस. बट उसमें हाँ जो कॉन्सेप्ट कर रहे हो उसे तरीके से करो. जो कॉन्सेप्ट को हर बार रिवीजन की जरूरत है उसे हफ्ते में 2 बार रिवीजन करो. जो एक बार 2 बार प्रैक्टिस से तुम्हें आ गया है उसको नेक्स्ट वीक पे ले जाओ. बट राइटिंग लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, और लिखो विद टाइम, विद द स्टॉप वॉच, सो दैट यू नो कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है इंडिविजुअली कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में. दैट मीन्स फॉर अब जैसे रिविजन हो गया, इसके बाद प्रैक्टिस करो, होमवर्क सेंड करो, जो भी तुम अपना प्रैक्टिस करते हो. मुझे सीधा ऐप वाला होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअली भेजो, वो करवाने के बाद ऐप वाला करो. सो दिस विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस कि नहीं हम क्रैक कर लेंगे, हमें आता है. सो अब जो चीज तुम्हारे साथ मिसिंग है वो सिर्फ ये एक छोटा सा कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है, वो इसी से बिल्ड होगा. विच आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस. एम आई? इज इट रेजोनेटिंग? क्योंकि मेरी तरफ से अब देखो मैंने 1.5 hours में नो 1.5 hour तो पूरे नहीं, मतलब 1 hour 45 minutes सॉर्ट ऑफ में 40 marks तुम्हें वाइंड अप कर दिए. तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा फोकस करो. अब इंग्लिश को अपना बनाओ, प्यार करो इंग्लिश से, तो हो जाएगी. एनी डाउट? किसी का कोई डाउट है, पर्टिकुलर कुछ चीज़ है दोबारा समझना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, अगर इंग्लिश से रिलेटेड ही जनरली कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो बताना चाहते हो, सो मोस्ट वेलकम. Anything that you would like to ask, speak, share? नहीं? All done? Is it clear? सो विद इन अ वीक एक मॉक टेस्ट के लिए मिले, एक हम मॉक टेस्ट डिस्कस ही करेंगे. उस दिन मैं नहीं, तुम लोग बोलोगे, तुम लोग आंसर्स बताओगे, मैं सिर्फ क्वेश्चंस पुट अप करूंगी और तुम लोग मुझे आंसर्स बताओगे, सो दैट आई कैन करेक्ट यू देन एंड देयर. या जो तुम्हारी अप्रोच में अब तक, क्योंकि अब जिसने भी प्रैक्टिस नहीं की, अब जो करेगा वो प्रैक्टिस, तो मे बी आफ्टर अ वीक उसे पता होगा कि मुझे प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं. मे बी देन वी कैन डिस्कस दैट. इज इट ऑल राइट? यस. यस. चलो ग्रेट. हाँ हाँ ऑनलाइन आदित्य, ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, डरो मत.
ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, और कुछ डाउट्स है कुछ भी है सो व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, एंड स्टडी। आई थिंक नाउ एक थोड़ी सी बेटर पोजीशन में होंगे और अब थोड़ा बेटर पढ़ भी पाओगे, राइट? सो सी यू आफ्टर सम टाइम, मे बी अ वीक और 10 days। तब तक तुम लोग अपना वाइंड अप कर लोगे, और फिर उसके बाद अगर हम एक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट टाइप्स रखेंगे, एक डाउट कह लो या टेस्ट टाइप्स कह लो, ओरल टेस्ट, तो तुम लोग भी एक बेटर पोजीशन में होंगे, तुम्हें भी पता होगा कि दैट वेयर आर यू स्टैंडिंग, यू नो व्हाट इज योर सिचुएशन, राइट? एंड देन यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस इन अ streamlined manner कि okay, this is where I'm standing, this is where I need to go, so this is the line, this is the journey that I need to basically walk, and what should be my approach from now onwards. Yes, okay, chalo, bye, see you next time. Bye. Bye, thank you, bye.